Bonjour. So children, I hope you all have done your yesterday's work in your notebook. Okay, the worksheet related to the grammar portion of lesson number 2. Just recap, we have done the comprehension, okay, lesson number 2. And then plural of nouns. I told you how many points are there. 5 points are there total. Okay. Then some exceptional cases are also there. After that we have learned how to conjugate IR ending verb. मैंने पहले भी बताया है आपको कि हर वर्ब को फ्रेंच में हम प्रोनाउन के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से लिखने को हमें कॉन्जुगेशन कहना पड़ता है, ओके। सो जैसे हमने ER एंडिंग वर्ब पढ़ा था, ओके, वैसे ही हमने IR एंडिंग वर्ब पढ़ रहे हैं। IR एंडिंग वर्ब को कॉन्जुगेट करने के सम रूल्स हैं। इसमें लास्ट में जो टर्मिनासियों पोर्शन होता है, फिनीर जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, तो इसमें जो आर है वो टर्मिनासियों है एंड फिनी जो है वो रेडिकल है, ठीक है। तो फिनीर वर्ब में से हम टर्मिनासियों को हटा के केवल रेडिकल अपने पास रखेंगे। उसके बाद हम इसमें क्या ऐड ऑन करेंगे, अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउन, ज के साथ एस, देन ट्यू के साथ एस, एल के साथ टी, देन नू के साथ डबल एस ओ एन एस, वो के साथ डबल एस ई जेड एंड लास्ट एल के साथ डबल एस ई एन टी, okay. I hope this is clear to you. You will write like this, and I have given you some list of the IR ending verbs also. Now children, today we are going to do the exercise, okay. Before that, in page number 28, as you can see, there are lots of vocabulary words given. I have already given you some vocabulary words that I hope you have written in your copy as well, okay. If you will find any difficulty, so you can refer this page, fine. Now have a look, page number 29, naf, okay. What is there? C'est la rentrée, Manuel et ses copains ont un nouveau professeur. How? This is a first day of school after the vacations, okay. And Manuel and his friends, his classmates, are with the new professor, okay. So we'll have the conversation first. Number 1, bonjour les élèves, good morning students. Je suis la nouvelle instructrice, okay. I am the new teacher, fine. Bonjour madame, comment vous appelez-vous, okay. Now she is asking what is your name, comment vous appelez-vous. So we are using the formal manner here because she is asking from the teacher, okay, and teacher is an elder person. So she is replying, Je m'appelle Marina, je suis espagnol. My name is Marina and I am Spanish. J'enseigne la math. J'enseigne means I teach mathematics, okay. Next one, vous avez quel âge, what is your age, he is asking. Now she is giving the answer, j'ai 30 ans, I am 30 years old, okay. Où habitez-vous, where do you live, j'habite à Madrid, okay, I live in Madrid. Next one, vous parlez combien de langues, how many languages do you speak. Je parle 3 langues, je parle espagnol, anglais et français. I speak 3 languages. I speak Spanish, English and French. Next one, vous êtes marié, are you married. Marié means are you married. Oui, je suis marié. Oh la la, vous parlez beaucoup. Now she is saying, see children, ooh la la जो है ये आपने पहले भी वर्ड सुना होगा. This is a French verb, okay. ooh la la means हम वाओ जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना वाओ, ऐसे ही वो फ्रेंच में बोलते हैं ooh la la. So what does it mean? Just एक एक्सप्रेशन देना, वाओ, fine. Vous parlez beaucoup, you speak very well, she is saying. Combien d'enfants avez-vous, how many
सॉरी, ये 16 था तो ये इसके बाद आएगा. नाउ शी इज़ आस्किंग कॉम्बियन ज़ॉम्फो आवेवू, हाउ मैनी चिल्ड्रन डू यू हैव. So she is giving the reply, oh lala, vous parlez beaucoup, you speak very well. Okay, so this is a conversation. Please एक बार फिर से इसको रीड करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे. It's very easy. Okay, now we are having the exercise. Now what we have to do, children, number 1 2 3 4 5 6, okay, and then 7 8 9. So what you have to do, first of all, cut question number 7 because this is a listening portion. We are not having CD right now, so we can't do this. Question number 8, you have to conjugate these IR ending verbs. This is some ER ending verb also. Okay, ER ending verb. आले verb को अभी नहीं करना है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी कि आले verb को conjugate कैसे करते हैं. आले means to go. Okay, so you will do regardez. Regardez is ER ending verb. Okay, rest are IR ending verb. So you have to write down these 4 verbs in your notebook with the conjugation. Now complete this one. अभी हम छोड़ेंगे इसको, ये भी नहीं करना है हमें. Okay, so question number 8 कॉपी में करेंगे, 7 and 9 अभी नहीं करना है. Next question number 6 you will do in your notebook. Okay, now have a look here. See, question number 1 and 2, children, ये आपका किससे related है? Lu, la, l apostrophe le. If you remember, we have learned in the last class the definite and indefinite articles. So these are the definite articles. Okay, ये आपको पता है. Lu we use before masculine, la we use before feminine, l apostrophe vowel के पहले, and le before plural. Okay, so this you have to do. Fine, बुक में करेंगे, बुक है नहीं है तो कॉपी में करेंगे. मैं आपको फर्स्ट 3 बता रही हूँ, रेस्ट 4 यू विल डू बाय योरसेल्फ. ओके, जेम डैश शोकोला ए डैश बोंबों. नाउ सबसे पहले अगर हमें वोकैबलरी याद नहीं है तो हम ये वाला पेज रेफर करेंगे. इस पेज में आप शोकोला देखिए कहाँ पे लिखा है, दिस इज शोकोला मीन्स चॉकलेट. ओके, शोकोला के आगे लू लिखा हुआ है, LE. ओके, इट मीन्स दिस इज मैस्कुलिन. चॉकलेट क्या है, मैस्कुलिन. तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, LE, लू. नो S इज देयर. ओके, इट इज़ नॉट प्लूरल. बट हियर बोंबों, बोंबों में आप देखो S लिखा हुआ है तो S है, इट मीन्स दिस इज प्लूरल, सो वी विल राइट ले. ओके, नाउ एतुदियोन पार्ल anglais. एतुदियोन स्टार्टिंग विद अ वॉवल, सो इट्स सिंपल L apostrophe. Okay, Mariel regard dash television. Television we have learned in the last class. Television is feminine, so we will use la. Okay, one more can I do? Okay, dash gomme a rose. Gomme means eraser, is red. Eraser is feminine, so it's la. Understood? So similarly ये वाले questions आप करेंगे. Next अगेन यूनदे, इसमें इंडेफिनिट आर्टिकल्स यूज़ करना है. वॉयला डैश स्टीलो ए डैश क्रेयोन. स्टीलो इज पेन एंड दिस इज मैस्कुलिन, सो वी यूज़ क्रेयोन के आगे S लगा है, इट मीन्स दिस इज प्लूरल, सो वी राइट दे. ओके, से डैश रोब ए से डैश यू. याद रखिए दोनों ही क्या हैं, फेमिनिन, सो यहाँ पे हम लिखेंगे यून यून. ओके, robe is dress and jupe is skirt. Nous choisons, we choose dash bonbon et dash gâteau. bonbon के आगे again S है तो this is they. Otherwise bonbon is masculine. Okay, एक gâteau is cake, तो cake के आगे क्या लगेगा, because this is masculine. Okay, rest you can do by yourself. Yes, next one, conjugate le verb. Je dash la leçon. अब यहाँ पे देखिए सब में IR ending verb है. ओके, ऑल आर IR ending verb and we have learned how to conjugate IR ending verb here. याद है? तो आपको याद है जब ज की बात हो रही है तो R हट के क्या लगेगा, S. ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फिनी. चलिए, वन थिंग आपको ध्यान में रखनी है जब भी हम क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं. ओके, अगर पूरे सेंटेंस का मीनिंग नहीं भी पता, इट्स फाइन. आपको क्या देखना है, जब भी हम कॉन्जुगेट करते हैं तो
आगे जो प्रोनाउंस लिखे हैं वो क्या हैं। अगर आपको प्रोनाउंस समझ में आ गए तो आगे कॉन्जुगेटेड पार्ट आप इजीली कर सकते हो। ओके, तो हमें पीछे का देखने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इतना देखो एंड आपका काम हो जाएगा। ओके, सो मैनुअल इज़ अ थर्ड पर्सन, ही और शी। मैनुअल किसी का नाम या ही और शी के लिए हम यूज़ करते हैं, तो इट मीन्स इलेल फॉर्म। इलेल फॉर्म में भी एस लगता है लास्ट में। ओके, सो दिस विल बी लाइक दिस। ओके, सॉरी, नो टी लगता है, माई मिस्टेक, टी लगता है। यहाँ पे चेक कर लेंगे हम, एल फॉर्म में टी लगता है। ओके, या फाइन। सो मैनुअल इज अ नेम ऑफ अ बॉय। नेक्स्ट वन ट्यू के साथ एस लगता है, तो अगेन FINIS। ओके, नाउ लॉम्फो, द चाइल्ड, थर्ड पर्सन, यस, तो यहाँ पे फिर से टी लगाएंगे हम। ऑल राइट, वन मोर आई एम टेलिंग यू, ले फ्रूई। नाउ ले फ्रूई, यहाँ समझ में आ रहा है आपको कि फ्रूट्स की बात हो रही है, प्लूरल की बात हो रही है। तो जब प्लूरल की बात हो रही है तो हम क्या लगाते हैं, GROSSI और R की जगह SSENT। ओके, फाइन। सो सिमिलरली these 5 you will do by yourself, it's easy. Now the fourth one, donner la plural de noms souvent, we have done the plural. ओके, प्लूरल नोम्स के हमने यहाँ पे रूल्स पढ़े थे, ये वाले, इनको ध्यान में रखते हुए आपको प्लूरल में कन्वर्ट करना है। और नॉट ओनली द वर्ब, द होल वर्ड, इट मीन्स रिलेटेड विद द आर्टिकल्स। ओके, सो ल विल बिकम ले, यस। शांदेल क्या होगा, एस लगेगा लास्ट में, ठीक है, एस लगेगा लास्ट में, शांदेल। यहाँ पे एक बार चेक करेंगे हम, अब यहाँ पे एस क्यों लगेगा, बिकॉज कोई भी रूल इसमें अलग से नहीं है, AIL में नॉर्मल एस लगता है, कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है। नहीं, शेवू देखो EU पे एंड हो रहा है, तो EU पे एंड होने वाले वर्ड्स के आगे एक्स लगता है। ओके, इजी। देन लू, ने जेड पे एंड हो रहा है, तो ने विल रिमेन ने, बट ल विल बिकम ने। ओइजो, OU, AU पे जो एंड हो रहा है उस पे हम एक्स लगाते हैं। ला क्रुआ, अगेन एक्सपेंड हो रहा है तो इट विल रिमेन सेम, बट आर्टिकल विल चेंज, सो ल विल बिकम ले। ओके, लूत्रवई विल बी ले ट्रावई। ट्रवो, इसमें आएगा AUX। ओके, एक मिनट, यहाँ पे हम देखते हैं, यस, नो, इसमें AUX नहीं आएगा, इसमें भी IAL है ना, तो ऐसा आएगा। ओके, राइट, सो सिमिलरली यू विल डू अदर वंस। नाउ फिफ्थ वन, बोंजूर, कंप्लीट द डायलॉग, यू हैव टू कंप्लीट द डायलॉग। इसमें क्या करना है, बहुत इजी है, एक बार पढ़ के देखो पहले, ठीक है। बोंजूर युन डैश पुर द, क्या हो सकता है इसमें, 5 लेटर्स का। रेस्टोरेंट में अनीश वेटर से बात कर रहा है, ठीक है, तो बोंजूर युन डैश पुर ता, एक ग्लास, 2 के लिए। ओके, 1 ग्लास फॉर 2, तो ग्लास को हम बोलते हैं तास। ओके, सिल वू प्ले, जब भी हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो प्लीज़ बोलेंगे सिल वू प्ले। वॉयला डैश युन ताब्ल लिव्र, वॉयला डैश युन ताब्ल लिव्र। चिल्ड्रन, यहाँ पे भी ताब्ल ही आएगा, तास नहीं आएगा, बिकॉज 2 पर्सन के लिए टेबल होगा, सो इट विल बी ताब्ल। ओके, वॉयला मिस्यू
This will be wrong. Okay. Une table libre. One free table is there. Voilà, monsieur. Yes, sir. There is one free table. Vous désirez. Vous जब भी EZ है तो लास्ट में तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? वो. ओके. EZ इज़ अ कॉन्जुगेटेड फॉर्म डिज़ायर की, तो EZ के साथ हमेशा वो आएगा. ओके. Je voudrais un jus de fruits et un pain au chocolat. Okay. I would like to have a fruit juice and chocolate bread. A for वो dash and for you डैश. इतना बड़ा वर्ड क्या हो सकता है एम से रिलेटेड? 2 पर्सन है, एक तो मिस्सी हो गया, दूसरा मदाम, बट मदाम की स्पेलिंग इतनी बड़ी नहीं होती. सो मदमुआज़िल. यस, इट विल बी मदमुआज़िल. ओके. Je voudrais une डैश. जी से स्टार्ट होने वाला है ग्लास. ए दे bonbon स्वीट्स. सफ़ेद 15 euro. It cost 15 euros. Okay. Now mete a plurial. What is this? You have to convert these sentences into plural sentence. ये आपको कॉपी में करना है. क्या करेंगे? मैंने आपको पिछले साल भी बताया था that हर एक वर्ड को आपको प्लूरल में कन्वर्ट करना है. So I am telling you these 3 first, you will do later. बाकी के खुद से करेंगे. Je choisis une glace. I choose one ice cream. So I will become we. So it will be nu. अब choisir का nu form क्या होता है? choisions. Des glaces. Okay. Next one, le livre est rouge. The book is red. So les livres sont rouge. The books are red. यहाँ पे भी S लगे. Elle a un cahier. She has a copy. So she will become they. A will become they के साथ क्या होता है? On they cahier. Okay. One more. Tu finis le chocolat. You finish the chocolate. So you will become vous. वो के साथ आ जाएगा फिनिश से ले शोकोला. ओके. ऐसा आएगा, यहाँ पे भी ऐसा आएगा. फाइन. नाउ दिस यू विल डू बाय योरसेल्फ. 9th यू हैव टू लीव. ओके. इतना करेंगे. एक बार 5th वन एंड 6th वन बहुत अच्छे से करना है. 5th वन एक बार फिर से रीड करके देखेंगे, एक बार रब करेंगे और फिर से खुद से करके देखेंगे. ओके. आई एम शेयरिंग दीज 3 pages of your exercise, okay, as a PDF file in your WhatsApp group. So children, please do these question answers. और अगर कोई भी डिफ़िकल्टी है प्लीज़ चिल्ड्रन मुझे कॉल करिए या फिर मुझे व्हाट्सअप करके पूछिए. ओके. प्लीज़ फिनिश दिस वर्क टुडे. यू आर हैविंग 2 days टाइम. आज और कल में कर लीजिए, बिकॉज नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम फिर 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे. ओके. So this we are leaving. Only question number 8 you have to do in the notebook. Fine. Okay. So au revoir. A bientôt. And please take care of yourself. So it's prends soin. Take care means prends soin. Fine. Au revoir.